Hello Rahul, hello Shubham, hello Shruti. Hi, Jatin. Hi. Hi, Jen. सीए फ्रेशर्स कौन कौन है इसमें? Oh, nice. So first of all, congratulations to all CA freshers. Uh, I think so. Your जैन में रिजल्ट आया होगा, right? Nee, actually, I cleared in May 25. I have 6 months of post qualification experience. Okay, okay. Yeah, same here. But the recent result was declared on Jan, right? Yeah, Yeah. yeah. And the March. campus placement has been done. It was declared in March. Jan was the exam period. Okay. This campus is done. Cool, cool. So congratulations to all. It is a nice feeling. Thank you. So first of all, I'll introduce myself and then we'll move forward. Okay. So this is Jatin Jagtap. I've completed my CA in May 22 attempt, and then I have joined Aditya Birla in this FPNA profile. But exactly when I have joined, I was unaware about this profession because actually I have shortlisted to Deloitte, but I don't wanted to get into audit, so I was exploring some other profile. So I came up with this profile. So I've joined Aditya Birla, and I've started knowing what exactly FP&A is. So I have worked around 1.5 years in Aditya Birla Finance, and then I've switched to SMFG Housing Finance. And that was the same role, but it was a upgraded role because that strategic role was also involved in. So I've learned a lot there, mainly what exactly FP&A is, budgeting, forecasting, the variance analysis, and all the ad hoc things what FP&A does. Like for board, we do board deck, investor presentation, we prepare all the things what CFO present to CEO, we do that exactly. And ad hoc dashboards, KPIs, dashboards, uh, and PPT. We must have hands-on PPT as well. So I've worked almost around 1.5 2 years over there, and now I have switched to. I'm now in Dubai-based company. It is a Viditech. It is fintech company basically. The Phone Pay and Paytm wallets. So basically, this is a company. So yes, right now I'm in Africa, and there is a time gap as well. So I'm managing to, you know, here now time is around 1:40 p.m. So my objective of this webinar is to give the basic understanding of what FP&A does, so that you can, be aware of the what exactly we do, so you can take a call whether you are interested in this course or not. So yes, anyone wants to introduce themselves? If feel free to. Hey, hi, Jitin. Yeah, myself Hi, Lakshmi hi. Arnavale. Yeah, I'm semi-qualified CA and CMA, and I do have around 8 years of experience. In my last company, I did variance analysis and all, but complete forecasting and all I didn't until now. So I'm learning. Thank you. Okay, nice. Hi, guys. My name is Shivam Goyal. I qualified my chartered accountant exams in May 25. Currently, I am working with the E-Trade Marketing Private Limited in the business finance and FP&A profile. I have 6 months of post qualification experience. Thank you. Okay, sorry, call agata. Okay, so guys, let's start our session. So I'll start from why FP&A. Those who are here, क्या किसी को पता है what exactly FP&A department does for the entity? Anything?
apart from this budget forecasting variance analysis, ये हमें पता है, but what exact role we do? So it's completely different from accounting. So accounting will be based on the historical data. So based on the historical data, we will do the forecasting and all. So this FP&A people will do, and whether we achieved the targets and all, how was the our company performance, all this FP&A team will do. Correct. Right. Sir, I also want to add, like, Yes. so if a computer wants to work, there should be operating system. So like that, if the business wants to work, the corporate finances need to be worked properly. So the FP&A team is the operating system of that corporate finance. Correct. And I also want to like join for the FP&A because I think I love with the numbers. And for the FP&A team, the numbers should be love should be there, and the business understanding should be there. And not only the understanding, they also get to know what could happen in the future and what is the impact could be happen. Not only just reporting the numbers, they should give the impact. So, and what happens the next and why it's happening. So in that way, I think that we. Thank you. I just want to Perfect. add something on that. Like apart from the number, you should have some like a good knowledge of the business acumen and the model of the our business is Right. doing that. This is very important in FP&A profile. What I believe. Right. Exactly. Like apart from numbers तो हमें पता होना ही चाहिए, but apart from that we should know the business, because the sales guy, they all are just running business, but उसको कितना चलाना है, क्या करना है, ये सब हमारे हाथ में रहता है. Exactly. Like you have mentioned operating system, like ड्राइवर्स तो गाड़ी चलाते हैं, बट उनको जो डायरेक्शन दिखाना है, जो जीपीएस वाला काम करता है, वो दैट एग्जैक्टली FP&A डज. सो बेसिकली द थिंग इज, जैसे अभी इसमें बहुत से लोग हो गए जिन्हें ऑडिट में भी जाना हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर गोज इनटू ऑडिट. बट व्हाई आई हैवंट, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम डेलॉयट, बट मैं उसमें गया नहीं बिकॉज आई डोंट वांट टू डू ऑडिट. क्योंकि ऑडिट इज लाइक जैसे स्कूल रिपोर्ट में स्कूल रिपोर्ट आता है हमें, तो वी आर जस्ट वेरीफाइंग दैट रिपोर्ट, स्कूल रिपोर्ट. बट व्हाट FP&A डज इज दे प्रिपेयर द स्ट्रेटेजी कि नेक्स्ट ईयर स्कूल में कितने एडमिशन्स होने वाले हैं, कितने फीस हम रखेंगे, और कितना कॉस्ट रहेगा, कंट्रोल करेंगे, कितने बैचेस रहेंगे. एग्जैक्टली. सो डिसीजन मेकिंग एंड इंसाइट्स जो रहते हैं, दैट एग्जैक्टली व्हाट FP&A डज. एंड मोस्टली लोग MIS रिपोर्टिंग और FP&A गाइस को इंटरचेंजली भी यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है. जो MIS रिपोर्ट करते हैं वो सिर्फ रिपोर्टिंग देंगे, PNL बन रहा है उनको सिर्फ PNL देंगे, बट PNL में जो वेरिएंस एनालिसिस करके जो एग्जैक्ट समरी आता है, जो हमें CFO को रिपोर्ट करना पड़ता है कि इसमें क्यों चेंजेस है, क्या चेंजेस है, एंड द रीजन फॉर चेंज एंड सोल्यूशन एज वेल, ये हमें देना पड़ता है. तो हम आज मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बताऊंगा जिससे विल क्लियर अबाउट दिस. सो विल स्टार्ट लाइक सबसे पहले व्हाट the basic of FP&A is the three pillars of FP&A, as we say, is budgeting, forecasting and variance analysis. Okay. So मुझे बताओ बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में क्या डिफरेंस है, या तो फिर ये दोनों सेम है. एनीवन? Budgeting is fixed. We don't change every time. But forecasting, based on the situations, we will change this rolling forecast and all will comes in the forecasting. Okay. The Anyone? main objective of budgeting is to give targets or decide the cost for each thing. But the main objective of forecasting is how the business is heading, where is the business heading towards during this period. For me, budgeting basically we plan for a specific period, like for a quarter or a like a financial year. But forecast we used to check like prepare a roadmap for like 5 years, 10 years, like what we are going to do. This is like basic difference between budgeting and forecast. Budgeting is like setting the targets for a specific period, but forecasting is the variance analysis related to the actual versus the budgeted and the changes what to needs to be done in future for assigning our goals. Okay. So basically this will be the yes. Budgeting is nothing but it's a target, and the forecasting is are we achieving the target or not, or any
changes are required, like realistic scenarios can be happened. So we need to forecast it, rolling like. Okay. So basically, this will be your first question if interview will ask you the difference between. I'll tell you what exactly in a practical scenario, what we do as a company. If the financial year is from April, as we know, so we start preparing budget 3 to 4 months before only. So we start from October or November. So we start preparing budget for complete year, complete financial year. So there are two approach to do budget. One is a top down approach, one is a bottom up approach. Top down approach is where जो management हमें बोलता है कि this fixed amount 1000 crore, this will be your budget. Now you can do whatever you want, what कहीं पे भी allocate करो, but this will be the budget, इससे cross नहीं होगा. The discussion between the management has happened and they have came up with a number. And bottom up approach is all the department itself, they will give us a input, they will give us their budget, and we will consolidate them and we will present to the management. So basically if कोई भी business जो stable business है वो top down approach में mostly जाता है, because management knows exact business, the macro environment, everything, so they know exact what will be the budget of our company for next year. But जो business unstable है या जो business में changes होते रहते हैं, so all the department gives their input. But in reality, most of the life, both approach, the combination of we apply. The management also give us a number and the department also give us a number. So we as a FP&A guy we the fulfills the gap between those numbers. Like management ने बोला कि 800 crore, but department में number आए 1000 crore. So वो 200 crore का जो दो gap है वो हमें fulfill करना है by interacting with each department. जैसे तुमने देखा कि cross functional and communication skills required है FP&A में. So we have to interact with each department. जैसे मैं गया HR department के पास, HR head counts देख रहा हूँ, and then अलग activities. फिर मैं sales के पास गया कि why you need so much head counts, etc. So ये सारे communication करने के बाद उनके साथ questioning करना है. तो for the questioning we need to prepare. We need to have complete understanding of each and every department कि वो लोग करते क्या और उनको कितनी need है. So वो गैप फुलफिल करते हैं एंड फिर फाइनली हम एक नंबर पे आते हैं. सो इसको बोलते हैं बजट. तो बजट जो होता है बोर्ड के सामने अप्रूव होता है, जो बोर्ड लोग अप्रूव करते हैं फॉर द फाइनल ईयर, एंड देन वो चेंज नहीं होता. इट इज कंप्लीट, इट इज फ्रीज नंबर. बट वाई वी डू फोरकास्ट? फोरकास्ट इसलिए होता है क्योंकि सीजनैलिटी चेंजेस होते हैं. काफी सारे चेंजेस तुम देखोगे. अभी जैसे मैंने एनबीएफसी का एग्जांपल देता हूँ. मैंने इंटरेस्ट रेट रखा मेरे एक प्रोडक्ट का 12%, बट आरबीआई के कुछ रेगुलेशंस आए एंड देन उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट कर दिया या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया. सो वी हैव टू कंसिडर इट इन आवर मॉडल, इन आवर टेम्पलेट. सो दैट्स व्हाई वी नीड फोरकास्टिंग. सो फोरकास्टिंग हमें करंट प्लानिंग, करंट सिनेरियो बताता है, बट बजट तो हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया था. फॉर एन एग्जांपल, मैं जैसे अभी मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं. अगर तुम्हें स्क्रीन दिख रहा रहेगा तो बताना प्लीज. Is it visible? Yes. जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं कि हम लोग कोई ट्रिप पे जाते हैं. तो फॉर एन एग्जांपल मैं जा रहा हूँ अप्रैल मंथ में हम लोग गोवा जाने वाले हैं ट्रिप पे. एंड देन मैं उसको बजट कर रहा हूँ. हम लोग सब दोस्त मिलके जैन से ही प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे. तो हमने देखा कि जो हमारा रेंट होने वाला है स्टे का, वो समझो हम लोग का 30,000 रेंट होने वाला है स्टे का. फूड का हम लोग का कॉस्ट होने वाला है फॉर एग्जांपल 20,000. हम लोग क्लबिंग करेंगे, वहाँ पे 15,000 हम लोग का जाएगा. ट्रैवलिंग में मेरा 10,000 जाने वाला है. एंड जो भी एडवेंचर वगैरह कर रहा हूँ उसमें मेरा 10,000 जाएगा. सो दिस बजट इज अप्रूव्ड, फिक्स्ड. हमने जैन में बना दिया ये सारा बजट और हमें पता चल गया कि 85,000 हमें लगेगा पूरा ग्रुप में. सो इट इज फिक्स्ड. बट क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग को अप्रैल में जाना है, मार्च में मुझे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने जो लिकर के प्राइसेस है उसको बढ़ा दिए. तो फिर मेरे सारे यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे. एंड देन मुझे ये मालूम पड़ता है कि एक नया इवेंट है जो सनबर्न इवेंट होने वाला है गोवा में. तो सनबर्न इवेंट होगा तो ऑब्वियसली सारे प्राइस बढ़ेंगे. तो फिर ये 30-35,000 हो जाता है जो हम लोग ने बजट किया था. फूड के प्राइसेस बढ़ते हैं 5,000 से, ये 25,000 होता है. क्लबिंग में कोई जाने नहीं वाला बिकॉज उस वहाँ पे वो इवेंट में जाने वाला है सनबर्न, तो ये प्राइस, इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा. एंड ट्रैवलिंग ऑब्वियसली फिर मेरा ट्रैवलिंग भी बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस भी बढ़ेगा.
एडवेंचर में शायद नहीं करूँ, मैं शायद यही अटेंड करूँ, तो इसका प्राइस नील हो सकता है। सो इसमें मेरे को ये मालूम पड़ गया कि मैंने जो बजट किया था तो उसका मेरा भी ज़्यादा फोरकास्ट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन, कुछ कंडीशन आई है। बट जब मैं एक्चुअल में जाता हूँ, एक्चुअल में जब मैं खर्चा करने जाता हूँ तो मेरा देखता हूँ तो मेरा तो इसमें मेरा इतना ही खर्चा हो गया 35,000 बिकॉज ये फिक्स रहेगा। बट फूड में को खर्चा ऊपर नीचे हो सकता है, तो फूड में समझो मेरा 27,000 खर्चा हुआ। मैंने क्लबिंग ज़्यादा कर ली, मेरा यहाँ पे 20,000 खर्चा हो गया। मेरा ट्रैवलिंग में इतना खर्चा हुआ ही नहीं, मैंने 8,000 में मैंने कर लिया ख़त्म। एंड एडवेंचर मैंने किया नहीं। एंड देन मेरा फिर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो हम लोग बजट नहीं करते हैं। जैसे समझो पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया तो फाइन मेरे को लगा, तो मेरे को फाइन का 5,000 खर्चा लगा। तो इफ़ यू सी, मैंने बजट 85,000 का किया था। मेरा फोरकास्ट जो किया मैंने 87,000 का था, बट मेरा एक्चुअल जो खर्चा हुआ वो तो 95,000 चला गया। सो व्हाट वी डू ऑन मंथ बेसिस, वी डू द वेरिएंस एनालिसिस। तो मैं देखूंगा कि रेंट ठीक है, इसमें मेरा 2,000 फोरकास्ट से ज़्यादा है। फिर इसका जो भी रीजनिंग यहाँ तक हो गया ही, मेरा डेटा 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 पूरा काम हो गया मेरे मैनेजमेंट। बट सीएफओ एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम्हें जाके सीएफओ को पूरा रीजंस के साथ देना है। तो मेरे को 2,000 जितने भी जो भी वेरिएंसेस है उसको इन डिटेल मेरे को पहले जहाँ मेरे को खुद को देखना पड़ेगा, एंड देन फिर रीजंस के साथ उनको बताना पड़ेगा। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी डू आवर बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। सो जैसे कि अभी मैं, यस, Yeah, Jatin, actually you did budgeting forecasting, right? So in which month you did the budgeting and which month you started forecasting? I General have did budget General for way. this example हाँ or हाँ, for company. for this example. For this example, I have done budgeting in Jan, Okay. हाँ. But what about and then I have forecasting? done Same month only. forecasting. I have done in the, नहीं मैंने मार्च में किया। I have done Okay. in the month of March because in the month of March the situation has been changed, सब conditions change हो गए। Okay, okay, fine. Thank you. So and in some companies they call roll forward forecast, latest estimates also, Okay. where month on month basis they do their forecast, because Okay. the templates and all the drivers, so everything is fixed. We just have to play with our drivers that I will show you in the Excel. So this was all about what our core thing, budgeting, forecasting. But for doing budgeting and all, we have to know complete understanding of the business. We have to sit with each and every department. You know what happens sometimes we see कि मेरा, like I was in NBFC, so disbursement वहाँ पे disbursement नहीं हो रहा है, तो disbursement shortage है. So we go with the sales department, we talk to them why disbursement is coming down, is there any volume issues, is there market is not good. So what they say कि मैंने तो, हम लोग तो अपने एंड से पूरा कोशिश की है, हम लोग ने 100% सारे लीड्स लेके आए, हम लोग रिपोर्ट शो करते, बट क्रेडिट डिपार्टमेंट उसे अप्रूव नहीं कर रहा है, सो उन लोग क्रेडिट पे डाल देते हैं। सो वील गो टू द क्रेडिट कि वाई यू आर नॉट अप्रूविंग, तो उन लोग बोलते हैं कि उन लोग जो भी लीड्स लेके आ रहे हैं कुछ अच्छा नहीं, उनकी केवाईसी अच्छी नहीं है, उन लोग बस बिजनेस बढ़ाने के लिए लेके आ रहे हैं, बट हमारे बुक्स खराब हो जाएंगे उससे। सो फिर ये प्रॉब्लम आता है, फिर उन्हें हमें डिस्कस करना पड़ता है कि यू हैव टू गो थ्रू इट ऑल, तुम्हें एक सोल्यूशन पे आना पड़ेगा। फिर उन्होंने अप्रूव भी कर दिया, बट फिर होता है कि एनपीएस होते हैं, तो हम लोग कलेक्शन के पास जाते हैं कि कलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर उन लोग बोलते हैं कि क्रेडिट ने कुछ भी अप्रूव कर दिया। रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने कलेक्शन टीम हेड से बात की है, दैट उन्होंने यही बोला कि जो यूपी एंड वो साइड में है वहाँ पे कलेक्शन, हम लोग के डेटा हम लोग एनालिसिस करते तो उससे पता चला कि कलेक्शन नहीं हो रहा है। सो हमने पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू, देन व्हाट दे सेड इज इफ दे गो टू द कलेक्शन ना, वहाँ पे धमकियां देते हैं उनको, लिटरली उनको भगा देते हैं वहां से। सो ऐसे चीजें भी होती है, मतलब so these all are the issue, and this is the thing we have to manage. We have to come up with a solution for each and every department. It is not just a number, it is always a solution we have to come up with. So this is all about the first three pillars, the budgeting, forecasting and the variance analysis we do. So any questions? I also want to show you this in Excel. Is my screen visible? Okay, so you can see here
My revenue for budgeted is 500. My actual what I've done is 462. And this is variance analysis, and this is percentage. This is all the report that we have to prepare on month basis. But this is just a report. So ये report लेके you can't go to your CFO. We have to come up with a summary ki what actually gone wrong. So there are questions like which line item has the biggest unfavorable variance? What question would you ask to the business? If anyone can say कि यहाँ पे क्या गलत हो रहा है और हम कैसे फिक्स करें इसको. देखो सबसे पहले रेवेन्यू हमारा डिक्रीज हो रहा है एंड टू मेजर थिंग हमारा मार्केटिंग स्पेंड इंक्रीज हो रहा है काफी ज्यादा. So there are two major issues we are seeing just from this. Also see the questions. Which line item has the biggest unfavorable variance? What question would you ask to the business? Revenue is down but the company is doing better or worse. देखो कैसा था, रेवेन्यू तो कम हो रहा है, फिर हम लोग को प्रॉफिट भी देखना पड़ता है कि प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसके. कि देखना इसमें they have seen marketing spend we have done 40% high. So how will you investigate it? So these all are the question which you have to ask to first yourself while doing the variance analysis, and then you have to come up with all the facts and all the solution, and then you should talk with the marketing data. Like for example, यहाँ पे marketing cost is higher by 40%. If you can see, this is 16 is 40%. You cannot go just to the marketing team and just say कि आपका cost इतना बढ़ गया है, so you have to control your cost. हम डायरेक्ट ऐसे जाके बात नहीं कर सकते. फर्स्ट वी हैव टू डू एनालिसिस कि इफ मार्केट व्हाई मार्केटिंग कॉस्ट इज हाई, कोई कैंपेन चलाया था एंड उसमें रेवेन्यू में कितना इंक्रीज है. वी हैव टू सी दैट एज वेल. इफ यू सी we have marketing spend of 50 lakhs and Q2 revenue is 320 and Q3 revenue is 400. Hello, am I audible? Yes, yes. Yeah, yeah, Jatin. Okay, so here what I have did additional spending of 50 lakhs, so my revenue has increased from 320 to 400%. But whether it is justifiable or not, मेरा ये खर्चा करना justifiable है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? What we will do, we will first see how my incremental revenue. My incremental revenue is 80 million, if you say 80, and gross profit is 55% is my gross profit from the revenue, so it is 36 millions. What is the net gain? Net gain मुझे कितना हुआ? If I do 36 million ही मुझे incremental हुआ है, but what I have spent is 50 lakh. So obviously it is not justifiable. If you say net gain 22 lakh, negative ROI. अभी मुझे मेरे पास सारी information है. Now I can go to the marketing team and I can say that this cost is not justifiable, and with a solution we can say that either you have to change the channel. अगर तुम YouTube से ऐड कर रहे हो तो शायद गूगल पे आ जाओ, या तो तुम किसी और एजेंसी को हायर कर रहे हो, शायद वो एजेंसी सही नहीं है, कोई और एजेंसी में शिफ्ट हो जाओ. सो दीज ऑल आर द सॉल्यूशंस जो हमें देने हैं. हमें सिर्फ जाके उनको क्वेश्चन नहीं करना है, हमें सॉल्यूशंस भी देना है एंड देन अग्री करना है एक पॉइंट पे आके. सो दिस आर द थिंग्स वी डू ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस. एनी क्वेश्चन? किसी कोई क्वेश्चन रहेगा तो Q&A में पूछ सकता है. आई विल ट्राई टू. There's no question, I can move forward, right? So everything is clear. The basics of FP&A, what exactly we do. Cool. So second module में हम जाते हैं जिसमें ये 3 पिलर्स तो हमने जान लिया, बट व्हाट एग्जैक्टली इज बिजनेस पार्टनर माइंडसेट होना चाहिए. व्हाट एग्जैक्टली इज बिजनेस पार्टनर माइंडसेट, जिसमें हम कोई भी डेटा कोई भी फैक्ट देख रहे हैं, उसमें 3 होता है. सबसे पहले होता है व्हाट, देन सो व्हाट एंड देन नाउ व्हाट. मैंने ग्रुप में एक PDF भेजा था, उसमें काफी सारे सिनेरियोज मैंने दिए थे.
तो वो सिनेरियोज में मैंने बोला था कि उसको कंप्लीट करना है, लाइक उसमें व्हाट मतलब व्हाट आर द एग्जैक्टली फैक्ट्स प्रेजेंट इन देयर, सो व्हाट मतलब व्हाट आर द इम्पैक्ट। जैसे मैं बोल रहा हूँ मार्केटिंग स्पेंड मैंने 50 लाख से बढ़ाया, सो दिस इज व्हाट आर द इम्पैक्ट। मार्केटिंग स्पेंड 50 लाख से बढ़ाया, मेरा रेवेन्यू 12% इंक्रीज हुआ। सो व्हाट में रेवेन्यू 12% इंक्रीज हुआ, बट इट इज नॉट जस्टिफाइबल, जिसमें मेरा नेट लॉस हो रहा है 12 लाख का। नाउ व्हाट में मैं उनको सजेशंस दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। जैसे मैंने बोला कि कैंपेन तुम चेंज करो, या तो तुम अपना जोग्राफिकल रीजन चेंज करो, या एक्सेट्रा। सो कम अप विद द सॉल्यूशंस, दिस इज नाउ व्हाट। तो आई हैव सिनेरियोज, मल्टीपल सिनेरियोज जो हम लोग गो थ्रू करेंगे, एंड तुम लोग मुझे इसका आंसर दोगे। मैंने ग्रुप में भी डाला था वो। इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? स्क्रीन विजिबल है ना? Yes. ओके, सो सिनेरियो 1, नागपुर ब्रांच स्पेंट 12 लाख ऑन ऑपरेशंस। देयर बजट वाज, मैंने 8 लाख का बजट था, मैंने 12 लाख स्पेंड किया। लेटर इन्वेस्टिगेटिंग वी फाइंड आउट दैट 2.5 लाख वाज अनप्लान्ड ब्रांच रिपेयर्स, 1 लाख वाज वन टाइम स्टाफ reallocation, and 0.5 lakh is a recurring utility expenses. So as a FP&A, how will you analyze this on basis of what, so what, and now what? Anyone? It's 2.5 and 1 lakh is the one-time expense. It won't appear every time. This 0.5 lakh is the recurring, means it will appear every month because it is showing like recurring utility. So this also we have to include and we have to do the forecasting. Right, correct. So 2.5 lakh is obviously it is a one-time expense, so it will not come occur in going forward. But 0.5 lakh is a recurring expense, so we have to come up with a solution whether there is a high electric charges has been done, or there is high unit they are utilizing it. So we have to dive into that. Exactly. Okay. Second one, Mumbai Central branch shows revenue up by 6 lakh versus budget. The team is celebrating. But when you pull up the PNL, if you'll see net profit is actually down 3 lakh versus budget. The branch ran a 9 lakh marketing campaign and grew revenue primarily through lower margin secured loans. तो उन लोग का 6 लाख से ज़्यादा रेवेन्यू बन गया है, वो लोग सब खुश हो रहे हैं। बट अगर तुम प्रॉफिट में देखोगे तो प्रॉफिट 3 लाख से कम हो गया है। So how, as a FP&A guy, you will analyze it? Revenue might increase because of the price reduced or quantity increased, Okay. and profit is reduced because of the other operating expenses, unexpected expenses, one-time expenses. We have to check everything, then only we will understand. Right. Anyone else? कोई और? We need to analyze like where the particular marketing campaign was executed for, like तो किसी large high margin project पे नहीं हुआ या low margin product पे ही हो पाया, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? We have to check with the marketing team or the sales team. राइट राइट, एग्जैक्टली। लाइक हम उन्होंने सेल्स टीम ने किया होगा कि लो मार्जिन प्रोडक्ट उन्होंने ज़्यादा बेच दिया है, तो इसके वजह से मेरा एक तो मार्जिन भी कम हो गया, एंड उन्होंने मार्केटिंग स्पेंड भी हाई कर दी है। सो इट इज़ नॉट दैट वी हैव टू सेलिब्रेट कि जस्ट मेरा रेवेन्यू ज़्यादा हुआ है, बट उसके पीछे उन्होंने ये स्ट्रेटेजी यूज़ की थी। सो हमें उनको ये बताना पड़ेगा। करेक्ट, एग्जैक्टली। So these are the all cases of NBFCs, because I have worked in an NBFC. So I know better. मुझे इसी में पता है ज़्यादा। You can see in this June the company budgeted 180 lakh revenue in Q1, April to June. Actual came is 162. The CFO is asking why the business missed by 18 lakhs. We go back to the original annual operating plan. AOP is annual operating plan.
which is basically budget. The budget assumed a new product will launch in April. It actually launched in June. The product alone was projected to contribute 14 lakh in Q1. So यहाँ पे क्या हुआ exactly? पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है जो which is like supposed to be launched in April, तो उसका प्रोजेक्ट का डिले हो गया, that's why we just shortfall for the particular that revenue. So I would suggest कि we have to check with the team who just planned for the April launch, अगर वो delay करते हैं तो किस reason से they have delayed, and of course उसको sum up करने के लिए what we do, like Q1 we missed, like we will adjust our forecasting for the upcoming period. Right. It means we have done our wrong assumption. It was done while budgeting. Yes. कि हम बजट कर रहे हैं अप्रैल से, बट प्रोडक्ट ही लॉन्च मेरा जून से हुआ है, एंड देन वी आर डूइंग वेरिएंस एनालिसिस ऑन क्वार्टरली बेसिस कि क्यों मेरा पूरा Q1 का खर्चा क्यों, मतलब रेवेन्यू कम क्यों है, जबकि मेरा सिर्फ एक ही महीने का रेवेन्यू मुझे मिला है, जून मंथ का. Correct. करेक्ट, राइट. The board meets Monday. They want to know if we open 3 new branches next year, what is the break-even timeline? I need something by end of the day. वो तुमसे मांग रहा है कि मुझे end of the day मुझे पूरा timeline बताओ कि break even time कब होता है, because we are setting up a new branches. You have access to all existing branch data, setup cost, headcount, monthly revenue. What information data do you need to build this analysis? और तुम्हें क्या क्या डेटा लगेगा कि तुम्हें पता चले? पहले आराम से सोच लो. तो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो. ये तुम अगर ज्वाइन करोगे तो ये होना ही है. एनीवन? मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? तुम कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ राइट और रॉन्ग आंसर है ही नहीं इसका. We think of payback period, but I think for setting up branch, payback is not right, since like setup cost and recurring expenses are there. So no, I don't think that. Correct. We will first of all we will see the what is the setup cost, what is monthly recurring expense, what is monthly revenue. So basically we will do the past data analysis from the existing branch and from the existing geographical area where we want to open, right? Yes. And then we can come up to, like, we have seen that some branches does break even in 8 months, some branches does break even for 12 months, some take 2 years, and we can come up with a reason why 2 years, why 8 months. So we whoever brand does the aggressive selling and aggressive strategy does the break even at 8 months. So we will come up with a solution. If we do aggressive strategy, we will do our break even by 8 months, and if we go slow, we will do a break even by 2 years, whatever it is. It depends upon the condition and geographical region where we are opening our branches, right? Yeah. True. So these are all the business partner mindset. So apart from what we do, our daily life project, like we do our actuals, budget, variance analysis, etc., that are the part of the FP&A, but these are also the strategic decisions we have to come up with. So ये चीजें, ये analysis, ये mindset, ये सब experience के साथ ही आता है. Like I'll share you my one of the experience when I've joined. सबसे पहले तो I have just prepared a dashboard what I was said to, and I just gone to the meeting, and then फिर वहाँ पे रीजनल हेड ने पूछा कि यहाँ पे जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो 78% है, यहाँ पे 51 का टारगेट है, तो इतना कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्यों आ रहा है? एंड आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक. मुझे पता ही नहीं था कि इसको प्रिपेयर करके जाना है, क्या एनालिसिस करना है, क्या नहीं करना है. मुझे बस बोला गया था कि तुम्हें ये डैशबोर्ड बना के लाना है. मैं बना के गया, बट आई वॉज कम्प्लीटली फेल्ड बिकॉज उन्होंने, मतलब इट इज एक्सपेक्टेड कि तुम जब बना के ला रहे हो तुम यू कम अप विद रीजनिंग्स, ऐसे कोई जा ही नहीं सकता. सो वहाँ पे फर्स्ट मेरा लर्निंग था, काफ़ी ब्लंडर था. फिर उन्होंने मेरे को नेक्स्ट में हेड काउंट, जस्ट दे हैव गिवन मी हेड काउंट रिपोर्ट ऑफ सेल्स कि इतने ब्रांचेस है एंड इतने हेड काउंट से. 3 दिन का टाइम दिया, कम अप विद एनालिसिस. That was my probation period. Basically, they wanted to check. So I did all the branch analysis at a branch level,
and put the disbursement link to the branch, and I have seen the productivity of the each branch. So I come up with a insight that कोई branch की productivity इतनी कम है और वहाँ पे हेड काउंट्स काफी ज्यादा है unnecessarily. So वो मैंने मंथ ऑन क्वार्टर एनालिसिस करके एक पैटर्न पता चला कि ये ब्रांच जरा भी काम नहीं कर रहा है या तो कोई ब्रांच आउट परफॉर्म कर रहा है. सो ये सारे इंसाइट्स लेके आई गॉन टू माय सीएफओ एंड देन वी सेट एंड देन फिर हमने वहां से स्टार्ट किया कि जो सेल्स में काफी ज्यादा लोग हैं, वी हैव टू डू कॉस्ट कटिंग नाउ एंड वी हैव टू कट डाउन ऑल दी सेल्स अकाउंट्स. सो वहां से वी हैव स्टार्टेड कटिंग डाउन. सो हमने अराउंड 15 to 20 CR सिर्फ हेडकाउंट कट करके किया है. जैसे सेल्स हेडकाउंट भी कट किए हमने, BCM ब्रांच क्रेडिट मैनेजर, ये सारे हेडकाउंट हमने कट किए. तो अराउंड हम लोग वी हैव सेव 15 to 20 CR ऑन दैट. सो इट इज लाइक इट इज आवर ड्यूटी, आवर वर्क. हमें इसलिए ही देखो, एक चीज है कि तुम सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हो, तुम्हें जो पैकेज मिलेगा समझो 10 लाख 12 लाख एज अ फ्रेशर तुम्हें मिल जाएगा, बट जो पैकेज को कैसे ग्रो करना है वो पूरा कंप्लीटली इट इज इन योर हैंड. इफ यू आर जस्ट रिपोर्टिंग तो तुम्हें फिर वही 5%, 6%, 7% हाइक मिलेगा, उसमें खुश रहो बिकॉज यू आर जस्ट रिपोर्टिंग. बट यू आर कमिंग अप विथ सच इंसाइट्स कि हम कहाँ कहाँ कॉस्ट कट कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं प्रोसेस को. ये सब चीज में अगर तुम लोग घुसोगे ना, देन कंपनी विल पे यू 20%, 30%, 50% भी देगी, तुम्हें स्विच भी मिल जाएगा. और लाइक मैं एज अ फ्रेशर मैंने ज्वाइन किया था एक्स नंबर ऑफ पैकेज में. आज मेरे को कंप्लीटली 3.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने अपना पैकेज ट्रिपल कर दिया है. सो मेरा 3 टाइम्स मैंने पैकेज कर दिया है, सिर्फ यही कंपनी में सीख सीख के ही. बिकॉज जब मैंने ज्वाइन किया था, यू वोंट बिलीव, मुझे एक्सेल चलाना ही नहीं आता था. ऑनेस्टली मुझे आता ही नहीं था इतना. आर्टिकलशिप में भी हम लोग, मैं बहुत स्मॉल फर्म से था, वहाँ पे कुछ क्लाइंट्स थे ही नहीं ज़्यादा, सिर्फ रिटर्न फाइल किए हमने और ऑडिट किए छोटे छोटे कंपनी का. तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सेल यूज़ हुआ नहीं है. तो स्किल्स बहुत ही कम स्किल्स थी. ये तो सिर्फ मेरा मेरे को कॉल आया, जस्ट इंटरव्यू मेरा अच्छा गया बिकॉज मैं प्रिपेयर होके गया था कंपनी के बारे में बेसिकली. क्योंकि एज अ फ्रेशर उन लोग तुमको डीप डाइव में कोई इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछेगा. उन लोग बस देखेंगे कि तुम्हें काम करना है ये फील्ड में, तो उस हिसाब से उन लोग सीए फाइनल्स के क्वेश्चन पूछेंगे, अकाउंटिंग के क्वेश्चन पूछेंगे, FR, ASM, एवरी क्वेश्चन पूछेंगे. तुम लोग उसका जवाब दे रहे हो, तुम लोग को ले लेंगे. बट एट अ स्किल लेवल मैं इतना मतलब नहीं आता था. मैं देखता था सारे कलीग, सारे सीनियर्स एक्सेल चला रहे हैं, उन लोग फॉर्मूलेस डाल रहे हैं, पाइवट रिफ्रेश कर रहे हैं, डैशबोर्ड बना रहे हैं, हर एक PNL बना रहे हैं. आई वॉज कम्प्लीटली बैंक. मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं. बट इवेंचुअली तुम सीखते हो एंड देन ऑब्वियसली वो तो तुम पे है कि तुम्हें कितना सीखना है, कैसे सीखना है. बिकॉज इसमें फॉर्मूलाज अगर देखोगे, 3-4 फॉर्मूला रहते हैं. वी लुकअप यूज करने आना चाहिए, फिर पाइवट टेबल आना चाहिए, इंडेक्स मैच आना चाहिए. ये जो 4-5 फॉर्मूला, इफ एरर, ये सब इतना भी आ गया ना तुम लोग, बहुत है ये. फॉर अ फ्रेशर्स तो बहुत है, क्योंकि मुझे इतना भी नहीं आता था स्टार्टिंग में. एंड देन PPT स्किल्स होने चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल्स एज इन जैसे तुम डिपार्टमेंट के साथ बात करें तो यू शुड बी एबल टू कन्विंस देम कि नहीं, आप 100 रुपया मांग रहे हो, मैं 80 ही दे सकता हूँ. नाउ यू हैव टू कन्विंस देम कि क्यों 80, एंड देन दे हैव टू अग्री विद दैट. So this is the communication skill required in this profession. So anyone, any questions? कोई भी questions? कोर्स से मतलब इससे रिलेटेड या तो फिर कुछ भी questions before moving forward. So yes, and सबसे important skills is financial modeling. We have to prepare, we have to come up with a template. So how we prepare templates, मैं तुम्हें एक basic बताता हूँ screen पे. Hi, Jitin. Jidhi this Yes. side. I just wanted to ask one question from you. So, my Yes. articleship experience is in internal audit domain. So, I understand business and also I interact with different departments such as procurement, HR. So, in our field, we interact with the different process owners. But I also wanted to go into this profile as a CA fresher. But Yes. I'm not getting an edge, like I'm not even, my resume is not getting selected. I don't know what is the reason. Like, as a
CA fresher or as an internal audit domain experience, but they are not considering me for the FP&A profile. I don't know what is the gap. Like as a Hmm. CA fresher, I may not be equipped with the knowledge like an expert in the FP&A, but if I would get a chance for interview as well, like I would Right. do, at least I can make them understand that I know, I have a experience of communication with cross-functional team. So I understand Right. what they work, how does the process work into the organization. So I know various mechanism of controls, approvals, and so many things. Like an internal audit is Good. very much interacted with the internal part of the organization rather than a staff Correct. auditor because they are more aligned to the numbers. So, but I'm not Right. getting an edge for the that someone would interview me. So this is a very harsh reality I'm facing right now. It's been two Hmm. months. I am keep trying on LinkedIn as well. I reach out to the people who are having an experience under the FP&A profile. But I don't know, my CV has some lack of points, but as a CA fresher, what you will expect from me? So I don't know Yes. what is the reason. Like, I'm not getting a Okay. edge. I'm not understanding where I the gap is understand. from. Yeah, I understand. Like you have said, you are done into the internal audit, which is you are so much of capable doing FP&A. I can completely say that. And if your CV is not getting shortlisted, what is your concern, right? I don't know. Like, if I reach out to What the I can people say is, under the yeah. So when I reach out to the people under the FP&A domain, so I hmm, connect with them in on individual basis. So I don't prefer to post the my CV on direct career portal of any I, uh, company, but I go to the person who are working under them and share my resume. I don't okay. get a helpful reply from them. Someone doesn't reply, and if someone reply, they said that there is no opportunity available. So I don't know what's the reason. Like, I don't know. I just want to add one thing. Okay. Like after my May qualification, I was like also hunting for the same domain. But the harsh reality is that people require qualification for this role. This is like what I got the reply from many people from working across different industry. Luckily, I got selected in an IT industry. But yeah, I would just suggest you keep trying and keep applying everywhere. Don't just reach the people individually, but do apply wherever you see the openings for the fresher. Don't go for like for the person for referral. It doesn't work at all. At least it is doesn't work for me, so I can say. Yes, like I completely agree. Yeah, you first of all you have to apply in every portal, and second thing, your CV should align with the job description requires in FP&A. You have done all the work, but you have to mention in that way that keyword. Some keywords are there that you have done the financial analysis, you have done the data driven costing, everything, every keyword. If that keyword is mentioned in your CV, now definitely they will shortlist. And as Rahul mentioned, you have to apply everywhere, not you have to just go to the individual person, because कोई देखता है सीवी एंड देन फिर वो भूल जाता है, ऐसा होता है मोस्टली. एवरीवन विल टेल यू दैट आई विल गेट बैक टू, एंड देन भूल जाते हैं कि. एंड जो स्किल्स की बात है, एज आई हैव टोल्ड, कि स्किल्स फ्रेशर्स का नहीं देखते इतना. एटलीस्ट मेरा नहीं देखा. दे विल सी द नॉलेज, हाउ केपेबल है, इसको काम करना है या नहीं करना है. दे विल सी दैट. एंड इफ यू आर फ्रॉम द internal audit, then you are too much of capable doing FP&A. It's just कि you have to apply in every platform. And also अपना CV भी change करना, थोड़ा modify करना, revamp करना according to the job descriptions of the FP&As. Job description मैं वैसे भी बताने वाला था, and how we can decode it and how we can enter into a have we can crack interview. But yes, Riddhi, ये तुम कर सकते हो. Okay, thank you, Jatin. Thank you, Rahul. Yes. So screen दिख रहा है मेरा. So basically है ना, this is a financial modeling. Financial modeling is, this is the bread and butter of our work.
So what we do, we have to prepare the P&L, budgeting what, but वो कैसे करे वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना. So what I prepared, we are into a cab industry, जैसे Ola, Uber, that industry we are into, and we have asked to prepare the forecasting, the budgeting, everything. We have given a two scenarios that they have told that सारी कार हमारी होगी. We have owned all the car, and the second approach is we are into a commission basis business. We will not own every car, but we are having all the commissions. So how we will approach? So first of all, what generally we do, we have an input column wherein all the data are to April till March 31st, 5 years data, 5 years we are preparing budget for. So we have a, if we don't have our past records, we can do the market research like what I have done. These are the active users, basic users, and free trials, and these are the conversion ratio because the existing company is working in some industries and they have a particular user base, but they also want to convert them into the cab service. So they want that user should also use their cab service from the same application. So these are all the conversion rate कि कितने % लोग मेरी कैब सर्विस लेंगे. So it will increase month on month. We can do the growth also, like मैं बोल रहा हूँ कि 5% year on year increase होगा, 4% anything. So the model we should keep all with all the models. So these are the user base of our ride hailing. We are giving the name as a ride hailing. Okay, so we are ready with our active users. And what will be the fare? सपोज ऐसे कि एक राउंड ट्रिप का ऑन एन एवरेज कार का 200 रुपया चार्ज होता है एंड बाइक का होता है 100 रुपीज ऑन एन एवरेज. And kitne car we are owning 7 cars and 25 bikes, and average trip per day, average trip we are giving 6 average trip for cars and 8 average trip for bike. So total monthly trip, if we'll see, we have 1260 monthly trip for cars and 6000 trip for bikes on monthly basis, and per vehicle cost is here and bike cost is here. And this is for the commission basis ki how much driver we have onboarded, how much driver onboarded, the average fare, average trip, monthly trip, and commissions. So this is the input tab. Everything whichever we need, we have to put in this input tab. So I'm available with my data. Okay. So what I do, I'll show you. तो मेरा ये PNL में आ रहा हूँ मैं, कार ओन फॉर 5 years में. यहाँ पे ये दिस इज फॉर द मैनेजमेंट रिव्यू. मैनेजमेंट ने देखा मेरा एक्टिव यूजर्स 18,000 है. ओके, इतने व्हीकल है, एवरेज फेयर. So how we'll calculate our revenue? How much ride monthly we are doing into the fares. So my total revenue will be 8.52, like 8,52 lakhs will be my revenue, and my driver salary. And how I come with 2,65,000. So every cost has a driver. हमने जैसे कॉस्टिंग में पढ़ा था कि सारे कॉस्ट का ड्राइवर्स होते हैं. सो फॉर दिस कॉस्ट वी हैव हेड काउंट 60 ड्राइवर्स थे और एक को सैलरी मिल रही है 20,000, तो 1,40,000. बाइक वाले की 125. जरा कॉल सेंटर्स में पीपल है उनको 10,000 सैलरी है एंड सपोर्ट वालों को 10,000 सैलरी. तो ड्राइवर सैलरी इज माई 2,65,000 इज माई ड्राइवर सैलरी. मैं उनको इंसेंटिव पे करता हूँ. अब इंसेंटिव में कैसे पे कर रहा हूँ? अगर उन लोग मंथ में 1,500 ऊपर राइड मार रहे हैं तो उनको इंसेंटिव मिलेगा. कितना इंसेंटिव मिलेगा? यहाँ पे 1% ऑफ इंसेंटिव मिलेगा अगर उन लोग 1,500 ऊपर के राइड मार रहे. और अगर नहीं मार रहे तो उनको 2,000 रुपीज फ्लैट मिलेगा. सो यहाँ पे 1,500 नहीं हुआ तो वी आर गिविंग 2,000 ऐसे. यहाँ पे 1,500 के ऊपर हुआ तो 1% ऑफ माई रेवेन्यू में उसको दे रहा हूँ. सो दीज आर द मॉडल वी फिक्स. जैसे फ्यूल एंड मेंटेनेंस. फ्यूल एंड मेंटेनेंस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे पेट्रोल कॉस्ट है. पेट्रोल पर लीटर कॉस्ट में देख रहा हूँ 120 रुपीज है. इफ यू दो कार का फ्यूल कॉस्ट मेरा कितना हो रहा है? मेरे को 69 लीटर्स ऑफ पेट्रोल आई रिक्वायर फॉर ईच ड्राइवर. क्योंकि मैं इतने किलोमीटर चलने वाला हूँ, मेरी गाड़ी इतना माइलेज दे रही है, तो आई विल नीड 70 किलोमीटर्स इन कार एंड 12 किलोमीटर्स इन बाइक. एंड तो उसका कॉस्ट कितना होगा? 120 रुपीज 120. सो आई कम अप विथ माई फ्यूल कॉस्ट एंड माई मेंटेनेंस कॉस्ट इज फिक्स्ड फ्लैट.
सो these are the models, these are, so each cost के हमें ड्राइवर्स बनाने पड़ते हैं. सो ऐसे हमें मॉडल्स डिफाइन करना होता है, एंड देन वी कम अप विथ आवर प्रॉफिट एंड देन क्यूमुलेटिव प्रॉफिट. सो इससे क्या होता है, सबसे पहले इसमें एक बेनिफिट है ये मॉडल में, हमारा बजट भी बन गया, एंड देन इफ वी डू आवर फोरकास्टिंग आगे चल के, सो हमें सिर्फ इनपुट्स जो है हमारे जो वेरिएबल्स है उसे चेंज करना है, मेरा फोरकास्ट भी पूरा परफेक्ट रेडी हो जाएगा, मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एफपीएनए का, मुझे वो भी करना, वो भी इजीली होगा. बिकॉज अगर समझो कल को मेरे को मेरे सीएफओ ने बोला कि तू 15% क्यों कमीशन रख रहा है, तू कमीशन तेरा 18% रख, यहाँ पे 18% कमीशन रख, तो मैं 18 यहाँ पे कर दूंगा, एंड देन मेरा पीएनएल फिर वैसे रिफ्लेक्ट करेगा. अगर कमीशन बेसिस में देखोगे तो मेरा पीएनएल वैसे रिफ्लेक्ट करेगा. सो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू डू योर फाइनेंशियल मॉडलिंग. तो ये मैं फाइल शेयर करूंगा, बट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें सारे फॉर्मूला ये सब हर एक चीज समझ में आए. मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिस इज हाउ यू डू मॉडलिंग, ये बेसिक होता है. सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? I just want to know, like, if someone is preparing a financial model for a company, तो एक कितने यस. like period का हम purview लेके चलते हैं, like for minimum 3 years, 5 years और 10 years, क्योंकि एक feasible एक picture दिखती है उससे कि like what is going on and what can. देखो बेसिकली तो 5 years ही कंपनी बोलती है बनाने के लिए कि 5 years का पिक्चर बनाओ. इफ यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट तो हम लोग बोलते हैं 5 years, बिकॉज दे वांट टू नो ना कि हमें ब्रेक इवन कब आएगा, एंड 5 years डाउन द लाइन मेरा बिजनेस कहाँ मूव हो रहा है. और एक फॉर एग्जांपल एक कोई प्री रेवेन्यू स्टार्टअप है, राइट, तो उसके कॉस्ट ड्राइवर्स और उसके उस वहां पर लेवल ऑफ अजम्पशन इज वेरी हाई कि हमको बहुत चीजें अज्यूम करके ही फिल्म मॉडल बनाना पड़ता है. राइट. तो उस चांस में लाइक व्हाट इज द एक्यूरेसी तो होती नहीं है, तो उस पॉइंट पे हम लोगों को क्या बहुत ज्यादा क्रिटिकलिटी पे लाइक फोकस करना पड़ता है कि हमारे अजम्पशंस कहाँ सही हो सकते हैं, कहाँ नहीं. हाँ, तो उसमें व्हाट वी डू फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट स्टडी करना पड़ता है, एंड वी डू द कॉम्पिटिटर एनालिसिस. तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में वी सी कि वो लोग क्या लेके चल रहे हैं, because we don't have data internally, we don't have data because we are launching that new product or new business. So दो चीजें, कंपटीशन एनालिसिस करो, एंड देन या तो फिर डेटा रिक्वायर, वी कैन परचेज डेटा एज वेल. कंपनी ये भी करती है कि जो डेटा चाहिए वो डेटा खरीद लेती है. Okay. सो अकॉर्डिंग टू दैट डेटा हम अपने assumption, ऑब्वियसली 100% एक्यूरेट कुछ नहीं होता, बट बेस्ट ऑफ आवर assumptions वी हैव टू पुट. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स ना, कि तुम्हारा assumptions एंड तुम्हारा एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आएगा कि हाउ गुड यू आर एट दिस. Okay. Thank you. So 5 year is ideal tenure to हाँ. prepare model. यस, 5 year इज आइडियल, देन डिपेंड्स अपॉन मैनेजमेंट की हाउ दे से, मतलब उनको कितना चाहिए, क्या चाहिए. राइट. सो बेसिकली अभी One question. यस. So where we will find the competitor data? I mean, we do have particular websites, right, to find this competitor data. So may I know the राइट. Yeah. सो कैसा होता है कि क्रिसिल अपने रिपोर्ट्स शेयर करते हैं, इकरा अपने रिपोर्ट शेयर करते हैं एवरी क्वार्टरली. तो उसमें उन लोग सारे इंडस्ट्री एंड सारे कंपनीज के सारे डेटा, पीएनएल एंड बिजनेस सारे उन लोग पब्लिश करते हैं. तो वहां से एक तो वो है, बिकॉज वी यूज टू डू दैट जब वी हैव टू डू आवर कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड बेंचमार्किंग. वी यूज टू डू बेंचमार्किंग, हम कहाँ खड़े हैं, कॉम्पिटिटर कहाँ खड़े हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से लेते हैं जो क्वार्टरली उन लोग फाइनेंशियल्स के साथ रिलीज करते हैं. एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में अगर कोई डेटा ना मिले तो इकरा, क्रिसिल, दिस ऑल रिपोर्ट ऑल दी डेटा. But I guess this company is really data of a listed company, right? जिसका डेटा आसानी से अवेलेबल रहता है. If for a like a Right. pre-tech product or a company developing a prototype, तो उसके competitors का डेटा लेना is something very different. But I believe. Yes, exactly. कि उसमें the data, we have to pay for that. So then only they will Correct. they will give या the तो data. या तो देखो पे करना पड़ेगा, या तो फिर इंटरनली टच होता है, इंटरनली कॉन्टेक्ट्स होते हैं. जो सीईओ का काम क्या होता है, सीईओ या सीएफओ का, तो उन लोग इंटरनली एक दूसरे से बात करते हैं और उन लोग आपस में कर लेते हैं लाइन. बट प्रोफेशनली yes, we have to pay to the organization, they will provide us with the data. Okay.
तो हम लोग जेडी देख लेते हैं एक बार कि एग्जैक्टली कॉमनली कि फाइनेंशियल जो एफपीएनए में क्या जेडी रिक्वायरमेंट होती है. Jatin, one more question. So in financial Yes. modeling also we do have many types. So which model we will use at what time? These and all also we want to know. Like many types, as in what exactly you want to know? DCF also there, three statement level These and are the method of valuation, I guess. Valuation, yes. They are the- financial modeling types only, right? These No, are we the derive a modelings, but these value- are Yeah, this Yeah. basically we derive a If you value want- for enterprise. So DCF, what you are saying is, I guess this is a valuation method, not modeling. Correct. Actually, these are the valuation type, and we are not doing the valuation of our company. We are just preparing our PNL, and we are showing to management what PNL will be there 5 years from now. So we are not valuing our company. Okay. Okay. So is my screen visible? Jitin, just one question. Like for the Yes, fin please. modeling, you are saying it is like attracting to mention on our CV, like we have done the financial modeling from X certification course. Right. Since like as Riddhi said कि CV shortlist नहीं होते, तो it might be a reason for that कि हमें फाइनेंशियल मॉडलिंग हम लोग एफपीएनए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट हमारे पास फिन मॉडलिंग की नॉलेज नहीं है या फिर ऐसा कुछ. दैट्स व्हाई आवर सीवी इज नॉट. For a fresher, it won't be the case, because when they're hiring a fresher, they already know that इन्होंने नहीं किया होगा आर्टिकलशिप ने, सबने नहीं किया होता है, सबने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं की होती है, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी मोस्टली लोगों को ये चांस नहीं मिलता है फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह करने का. सो दे आर फुल्ली अवेयर. इट्स जस्ट कि जो कॉमन चीजें हैं वो चीजें तुम्हारे रेज्यूमे में नहीं है ना, उससे उन लोग को इशू होता है. जैसे एनालिसिस ऑफ डेटा, उनको एनालिसिस वर्ड से बहुत प्यार होता है इन लोगों को, तो एनालिसिस अगर तुम उनको दिखता है कहीं पे भी, सो उन लोग फिर वो वाला रेज्यूमे देखते हैं. हम कैसे, वी आर डूइंग ऑडिट, वी आर डूइंग इंटरनल ऑडिट, वी आर डूइंग स्टैट ऑडिट, तो हम अपना सारा वो एक्सपीरियंस देते कि हमने ये चेक किया, यहाँ पे वेरीफाई किया ये. बट व्हाट वी ऑल्सो डू इज वी ऑल्सो डू द फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ कंप्लीट डेटा. वो सब चीजें वी प्रोवाइड इनसाइट्स टू द मैनेजमेंट, व्हाट टू डू, वी हैव अ डिस्कशन विद अ हेड. तो ये सारी चीजें उन लोग देखते हैं ना, तो उन लोग थोड़ा फिर ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं उसकी तरफ. जैसे इफ यू कैन सी जेडी, मेरे जेडी में, और ये ना कॉमन जॉब डिस्क्रिप्शन आता है कोई भी कंपनी का, या तो तुम लिंक्डइन पे जाके देखोगे तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रिपेयर एनुअल बजट एंड पीरियोडिक फोरकास्ट, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था. तो उन लोग इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे कि बजट और फोरकास्ट में डिफरेंस क्या है एक्सेट्रा. एंड दूसरा, परफॉर्म वेरिएंस एनालिसिस एक्चुअल वर्सेस बजट फोरकास्ट एंड आइडेंटिफाई की ड्राइवर्स. जैसे हमने वेरिएंस एनालिसिस किया मार्केटिंग का, वेरिएंस एनालिसिस किया हमने रेवेन्यू का, और उसमें हमने पता चला कि कहाँ क्यों ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. तो कोई भी एक इंडस्ट्री का उन लोग पूछेंगे, या तो फिर उन लोग बोलेंगे कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताओ. डेवलप एंड मेंटेन मंथली एमआईएस रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट. दिस इज द पीएनएल व्हाट आई हैव शोड. जो पीएनएल हम लोग डेवलप करते हैं मंथली. एमआईएस रिपोर्ट मतलब जो डैशबोर्ड्स होते हैं, जैसे मैं बोला हेड काउंट का डैशबोर्ड हम लोग प्रिपेयर करते थे, तो सारे डैशबोर्ड्स मंथली अपडेट करना है उसको. प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसाइट्स एंड सपोर्ट बिजनेस डिसीजंस. दिस इज फाइनेंशियल इंसाइट्स, लाइक गोइंग टू एवरी डिपार्टमेंट, टॉकिंग टू देम, गिविंग देम इंसाइट्स कि ऐसे करोगे तो तुम्हारा कॉस्ट कम होगा, ऐसे करोगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा. प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देना है. जैसे मेरे वी हैव अ मल्टीपल प्रोडक्ट्स, और मेरे सारे प्रोडक्ट्स के पीएनएल बनते हैं. एफपीएनए में भी मैनेजमेंट पीएनएल बनाते हैं ना हम लोग. जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक स्टैट पीएनएल बनता है, तो सारे पीएनएल में फिर वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, कम करना है, प्राइस घटाना है. सो दिस वी आर गिविंग अ फाइनेंशियल इंसाइट्स एंड डिसीजन मेकिंग. जैसे कौन सा ब्रांच वर्क नहीं कर रहा है, तो कौन सा ब्रांच कट डाउन करना है हमें, कौन से ब्रांच को मुझे एलोकेट करना है. वर्क क्लोजली विथ क्रॉस फंक्शनल टीम, ये तो करना ही पड़ता है हमें, सेल्स, ऑपरेशंस एक्सेट्रा. मॉनिटर कॉस्ट एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन. ये तो हमारा ब्रेड बटर है. अगर तुम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन दोगे कंपनी को, तो कंपनी तुम्हें देखेगी, एंड देन फिर तुम्हारा जो अप्रेजल होगा उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि
हाउ रियली दे वांट यू टू स्टे इन द कंपनी, या तो फिर तुम कॉस्ट ऑप्टिमाइज एक कंपनी में किए और तुमने स्विच किया ना, मैंने वही किया था। मेरे को यही वाले जो जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये लाइन पे मुझे दूसरे कंपनी में जो हाइक मिला था वो 40% का हाइक मिला था, क्योंकि मैंने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया, मैंने बताया कहाँ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया है और उसका इम्पैक्ट कितना था। यस, अच्छा ओके, मेरे को लगा क्वेश्चन पूछ रहा है राहुल। और एनालाइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रेंड्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियसली मंथ ऑन मंथ ट्रेंड देखना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड देखना है, पैटर्न देखनी है, उसमें एनालिसिस करना है। तो ये सब चीज़ें हमने अभी डिस्कस की और यही चीज़ें होती है जॉब डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा उन लोग तुम्हें कुछ क्वेश्चंस है ही नहीं इसमें पूछने के लिए कि एक्स्ट्रा कुछ पूछोगे। ये जो जेडी है इसमें से ही पॉइंट्स अगर इंटर तुम अपने रेज्यूमे में फिक्स करो, डाल दो अंदर, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है तुमने किया है नहीं किया है क्या किया है, तुम इसको डालो। बट बिकॉज यू नो नाउ ना कि उसको जवाब कैसे देना है। अगर मेरे को इंटरव्यू ने पूछ लिया तो मुझे उसको जवाब कैसे देना है, बस वो प्रिपेयर करना है। और स्किल्स में तो बेसिक, जैसे मेरे पास नहीं था एक्सेल स्किल्स ना पीपीटी स्किल्स, कोई स्किल्स नहीं थे। जो भी हुआ मेरे को काम करते करते ही सारे स्किल्स डेवलप हुए, इम्प्रूव हुए हैं। एंड मैं ये भी बोलूंगा कि अगर तुम लोग काम कर रहे हैं एफपीएनए में कहीं पे भी 1.5 साल में, मतलब लोग तो बोलते हैं कि यू शुड नॉट स्विच टिल XYZ, बट ट्राई टू स्विच 1-1.5 साल के अंदर। अच्छा खासा पैकेज उठाओ, ग्रोथ लो, स्टार्टिंग में 30-40%, और फिर सेटल हो जाओ, फिर वापस स्विच करो। बिकॉज स्टार्टिंग के पीरियड में स्विच करना इजी है, कर लोगे अच्छा पैसा मिलेगा, बट बाद बाद में स्विच करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब तुम एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो इंटरव्यू क्रैक करना इजी है फ्रेशर्स के लिए। इतना जो चीज़ हमने डिस्कस की है उसको ही अराउंड उन लोग सवाल करेंगे। एंड तुम्हें अपने सीवी में ये डालना है, तुमने नहीं भी किया फिर भी डाल दो। और सीवी में अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया तो यू हैव टू जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि मुझे ये इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं करके। एनी डाउट? कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी, किसी को कुछ भी पूछना हो या कुछ नहीं समझा हो, या जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके अलावा भी किसी को कुछ और पता हो तो यू कैन शेयर। लाइक लक्ष्मी, यू कैन शेयर, you are into FP&A, right? So अब तक के डिस्कशन में आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ इज दिस प्रोफेशन, तुम्हें कैसे लगा? हाउ इज लाइक डू यू फील कि यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस प्रोफेशन, यू हैव टू टेक चांस इन दिस प्रोफेशन? बिकॉज व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन इज, एक बार तुम्हें ग्रिप आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, तुम कहीं पे भी काम करो। फिर तुम, जैसे मुझे अभी यहाँ पे दुबई में मिला है, यहाँ पे मतलब तुम यूके जाओ तो कोई कोई भी कंट्री जाओ, हर कंट्री में, हर डिपार्टमेंट में, हर कंपनी में it is required to have this FP&A department, and FP&A और obviously forecasting, budgeting वर्ल्ड वाइड ग्लोबली करना ही है। कॉस्ट कटिंग, सब कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, सब जगह करना ही है। तो और तुम्हें कुछ नया लॉ नहीं पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा जस्ट थोड़ा बहुत ही पढ़ना पड़ेगा, एकदम से कंप्लीट चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे टैक्सेशन, अगर तुम इफ़ यू आर इनटू टैक्सेशन, तुम्हें कोई और कंट्री में जाना है तो वहाँ का पूरा टैक्स समझना पड़ेगा। ऑडिट में है तो भी तुम्हें लॉस सारे समझने पड़ेंगे। तो इसमें सारे इतने लॉस समझने नहीं पड़ते, इट इज जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम कहीं पे भी काम कर सकते हो। सो गाइस, एनी क्वेश्चंस? सो हम कितने लोग, मतलब तुम में से कितने लोग एक्चुअली वांट टू बी इनटू एफपीएनए अभी? जैसे मैंने बताया कि ये सारे व्हाट ऑल वर्क वी डू अकॉर्डिंग टू Actually, दैट। Jitin, I'm already working in FP&A domain हाँ, you are in all MNC. Yeah. So yeah, the obviously field, you are the domain is absolutely new for me and something very learning. तो मैं तो बोलूंगा कि हाँ मैं भी सीख रहा हूँ, बट हाँ quite amazing job. But I am thinking of making a switch in nearby 2 or 3 months, since I believe कि FP&A in a manufacturing or a product based company is something more learning rather than a service industry.
क्योंकि उसमें Right. मतलब there are many items to track. In particular, in my company, they are more focusing on the revenue and margins apart from other things. Got it. So you are basically, because ऐसे भी होता है कि basically उन लोग क्या करते हैं, एक जन को एक चीज दे देते हैं and they are doing that only. Correct. Since I am fresher, I'm not arguing कि हाँ मुझे सब करने को भी मिलेगा, but Right. हाँ, but I believe कि But FP&A eventually, yes, eventually it will be happen for me. Like मुझे चीजें मिलेगी, like the fin modeling and other things they are doing. Managers are doing that because this is something critical or forecasting. But I would suggest कि if someone is correct, looking because, for FP&A to start with a product based or a manufacturing industry is something very learning. right. Correct. Because ये प्रोफेशन में एक तो तुम्हारे एनालिसिस स्किल काम आती है Definitely, एंड 100%. तुम्हारे, बिकॉज अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें एक सिर्फ डेटा दिया जाएगा एंड इट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि तुम वो डेटा के साथ कैसे खेल रहे हो. द अपॉर्चुनिटी विच आई हैव गॉट इन द सेकेंड कंपनी विच वाज हाउसिंग फाइनेंस, हम लोग वहाँ पे इतना काम होता था कि हम लोग कभी कभी तो है ना 2-2 दिन तक ऑफिस में रहते थे. बट द थिंग वाज कि इतना कुछ वहाँ से सीखने मिला, इतना कुछ अंडरस्टैंडिंग लिया, क्योंकि हम लोग का डायरेक्ट रिपोर्टिंग सीएफओ को होता था. हम लोग उनके साथ बैठते थे, उनके साथ बैठ के, और फिर उनका जो इंसाइट्स होता है, उनका जो सोचने का तरीका होता है, वो सब चीज़ जब हमें मालूम पड़ता है ना, तो इट विल ऐड वैल्यू टू यू, वैल्यू टू इन योर सीवी. एंड देन फिर जब तुम स्विच करते हो ना, और स्विच करने के बाद जब तुम लोग ये सब प्रेजेंट करते हो ना, जब इंटरव्यू में एक तरीके से एक स्टोरी लाइन प्रेजेंट करोगे, तो डेफिनेटली उन लोग सिलेक्ट तो कर ही लेंगे, प्लस तुम लोग बोल जो पैसा मांगोगे वो पैसा भी मिलेगा. बिकॉज इवेंचुअली Like जो भी what हम लोग ग्रोथ yes, के लिए, yes, what I've learned कि नंबर से ज्यादा मैंने 6 महीनों में बिजनेस मॉडल समझना जरूरी ये सीखा है कि what particular business is doing. करेक्ट. FP&A folks बिकॉज अगर पूरा डिपेंडेंस उनके ऊपर है. yes. बिकॉज बिजनेस समझोगे ना, तो सेम बिजनेस में कॉम्पिटिटर तुम्हें इजीली ले लेगा. तो तुम 40-50% हाइक मांगोगे, वो लोग ले लेंगे. बट अगर तुम्हें सिर्फ बिजनेस नहीं पता है, तुम्हें सिर्फ डैशबोर्ड बनाना आता है, तुम्हें सिर्फ पीपीटी आता है ना, तो इतना वैल्यू नहीं मिलेगा. तुम लोग को 6-7% हाइक मिलेगा, उसमें खुश रहना पड़ेगा. वैसा है. Correct. Agree. Yes. So I hope कि this was a useful session for you guys. My goal is to make aware, या तो तुम्हें बताना कि what exactly we do. So I hope you got some insights and कुछ valuable insights मिले रहेंगे तुम्हें. बाकी ये सारे जो Excel and all, yeah, I will share in a group. Yes, Rahul, definitely. And obviously you'll do good. अभी तो तू freshers है, और मज़ा आएगा और ये प्रोफेशन में. बस ये है कि घुसना कंपनी में, हर चीज़ में घुस जाना, भले कोई मना भी करे ना, सारे डिपार्टमेंट में सिर्फ घुस जाना, देखना हम लोग कर क्या रहे. उसमें ज़्यादा मज़ा भी आएगा, सीखने भी मिलेगा. ओके गाइस, यार एक बार ये करो ना ऑन कैमरा, फोटो ले लेते हैं साथ में. माय कैमरा इज नॉट वर्किंग, आई एम आल्सो आउटसाइड. चलो कोई बात नहीं. ठीक है, तो ठीक है गाइस, थैंक यू. आई होप इट वाज अ यूजफुल सेशन फॉर यू. ऐसे ही ग्रुप कम्युनिटी बढ़ाएंगे, एंड जॉब जो भी मेरे पास आता है अपॉर्चुनिटी, आई विल शेयर इन द ग्रुप. एंड आपके पास भी जो भी आएगा अपॉर्चुनिटी शेयर करना. एंड यस, Thanks, Jatin. Thank you. thank you so much. Thank you guys. Okay, see you soon. Bye.